Greetings of the day, dear children. Welcome back to our e-learning sessions. Today we are going to start our chapter number 3 in political science, that is parliamentary government. In this chapter, our highlights will be parliamentary form of government. Then why did India prefer parliamentary democracy to other forms of government? Next will be composition and role of the parliament. Then lastly we will talk about what is the need for the laws. Let me introduce you to the chapter. Indians feel proud of the fact that they are citizens of world's largest democracy. आपको पता है भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. In a democracy, people play the most significant part in the process of decision making on all issues. जितने भी issues इस देश के अंदर होते हैं या किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं उसमें लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है. Therefore, a democratic government cannot afford to overlook the concerns of its citizens. और इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के डिसीजंस को ओवरलुक करना अफोर्ड नहीं कर सकती है और उसको ओवरलुक करना भी नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटली यही है कि द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. The place where the elected representatives make all important decisions is called a parliament. जहाँ पर इलेक्टेटिव जो इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पब्लिक के वो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बनाते हैं उसी को पार्लियामेंट कहा जाता है. द पार्लियामेंट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर विल्स, कंसर्न्स, एस्पिरेशंस एंड इंटरेस्ट्स. लोग अपने इंटरेस्ट को सूट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोगों को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. It is not only a key feature of a constitution but also the most important symbol of Indian democracy. It is only by understanding the institution of the parliament that we can understand the relationship between the process of decision making and popular consent. In this chapter, we will learn how the parliament enables Indian citizens to participate in decision making and exercise complete control over the government. Let's talk about parliamentary government, which is the first topic of our chapter. Democratic governments have three main organs: the legislature, that is which frames the laws, the executive, that is which implements these laws, and the judiciary, which resolves disputes and maintains law and order in the state. In a parliamentary government, the executive is dependent on the support of the legislature. A distinction exists between the head of the state and head of the government. The head of the government is the Prime Minister, while the head of the state is the President. Here the state is referred to as the nation. Whenever we are talking the state, the word state is used in political science. It generally refers to a nation, a complete nation, and whose head is the President in a democracy. And head of the government is always the Prime Minister. However, the President only enjoys ceremonial powers and works on the advice of the Prime Minister and his Council of Ministers, who are answerable to the legislature. आपके घर में दादाजी होते हैं, पापा जी होते हैं, मम्मी होती हैं, दादी जी होती हैं, बच्चे होते हैं, ये सब फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना. हालांकि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो हैं वो आपके पिताजी ही लेते हैं घर में, बट फिर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो आपके दादाजी की सलाह से ही लिए जाते हैं. तो सेम इज़ द केस विद द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. हालांकि प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द डिसीजंस नहीं बनाते हैं बट उनका कंसेंट हर डिसीजन में ज़रूरी होता है. दिस इज़ द वे द डेमोक्रेसी वर्क्स. एंड वाई डिड द इंडिया अडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट ही क्यों किया एट द फर्स्ट पोजिशन? The makers of our constitution, after taking into account the historical background, the politico-economic setup of our country and the diverse social elements, chose the parliamentary form of government for a variety of reasons. बहुत सारे reasons की वजह से parliamentary form of government को चूज़ किया गया इंडिया के लिए. सबसे पहली बात तो ये कि जब ब्रिटिश रूल था तो बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और उन्होंने उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी किया. उनको वो बहुत इम्प्रेसिव लगा और उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के टाइम इन सारी चीज़ों को, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान में रखा.
then a parliamentary system is both responsible and accountable to the people. There are lesser chances of the government acting in an irrational manner. In case that this does happen, then the ruling party might lose support of the majority in the parliament. एक सिंपल सा फैक्ट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को लोगों के हिसाब से ही चलना पड़ता है, लोगों के हितों को, लोगों के फ़ायदों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना होता है. ऐसी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हिसाब से ना चले, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनको नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट में आने के ऊपर जो उनके चांसेस हैं उसके ऊपर खतरा मंडराने लग जाता है. देयर इज़ अ 100% चांस दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट माइट नॉट कम बैक इन द पावर वंस अगेन. A parliamentary system leaves no scope for the emergence of a dictator. The head of the state possesses only nominal powers, while the real power rests with the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. The Council of Ministers is collectively responsible to the legislature. एक parliamentary system के अंदर dictatorship का जो चांस है वो नील हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो head of the state है, यानी कि जो president है, उसके पास सिर्फ नॉमिनल पावर्स होती हैं. जैसा कि मैंने आपको दादाजी और पिताजी वाला केस बताया, सेम उसी तरीके से, जबकि सारी की सारी जो मेन पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में हैं. जैसे घर में कोई काम करना हो, जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज़ करना हो, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी हो, तो ऐसा तो है नहीं कि पापा शाम को आएंगे और आकर बोलेंगे कि भाई आज घर में पार्टी है और सब फटाफट कर लो. ऐसा तो होगा नहीं ना. घर वालों का कंसेंट लेना ज़रूरी है, घर में सबको मिलके काम करना होगा, तब जाके एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन घर पे हो सकता है. इसी तरीके से ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये सेम तरीके से फैमिली मेम्बर्स के तरीके से ही काम करते हैं कि सब मिलके काम करते हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना व्यू होता है, उसको ध्यान में रखते हैं, तभी जाकर एक गवर्नमेंट चलाई जा सकती है. और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर को, पावर को, रूल्स बनाने को हेल्प करने में. Thus, in the words of Dr. B.R. Ambedkar, the main strength of a parliamentary government lies in its ability to satisfy the essential test of democracy, a combination of stability and responsibility. और इसी तरीके से हम बात करें डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के शब्दों में, तो एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो डेमोक्रेसी का टेस्ट जो है वो उसके लिए एसेंशियल है. स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलने चाहिए. गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चले और उसमें भी स्टेबिलिटी बनाकर रखे. इसी का नाम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यही एक सही तरीका है जिससे डेमोक्रेसी सही तरीके से काम कर सकती है. यूनियन लेजिस्लेचर. व्हेन टॉकिंग अबाउट यूनियन, यूनियन इज़ द सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है, दैट इज़ द पार्लियामेंट. The Indian Parliament or the Union Legislature is responsible for making laws for the country. It comprises three components: the President, the Lok Sabha, that is the House of the People, and the Rajya Sabha, that is the Council of States. The Lok Sabha and the Rajya Sabha are also referred to as the lower house and the upper house respectively. यानी कि लोक सभा को लोअर हाउस कहा जाता है और राज्य सभा को अपर हाउस कहा जाता है. Due to the presence of two such houses, our parliamentary system is called a bicameral legislature. इन दो हाउसेस के होने की वजह से ही हमारे लेजिस्लेचर को bicameral legislature भी कहा जाता है. The parliament has to meet at least twice a year. The party with most members in the parliament is the majority party and forms the government. जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, वही गवर्नमेंट बनाती है. और जो उसके ऑपोजिट होती है जो पार्टी, उसको ऑपोजिशन कहते हैं. द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी एंड देयर डिसीजंस. देखो, हमेशा एक चीज़ होती है कि लोग जो है वो दो गुटों में बटे हुए होते हैं. एक जो उस चीज़ को फेवर कर रहे हैं और एक जो उस चीज़ के खिलाफ खड़े हैं. इसी तरीके से जो खिलाफ खड़े हैं वो ऑपोजिशन है, जो फेवर कर रहे हैं वो मेजॉरिटी पार्टी है. और गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करती है. द लोक सभा और द लोअर हाउस कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Even though it is called the lower house,
It has more power as it represents the will of the people. लोकसभा को चाहे लोअर हाउस कहा जाता हो, पर फिर भी उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पावर लोगों के हाथ में है। लोगों ने जिन लोगों को चुना है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर वो उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उनका पावर में आना, नेक्स्ट टाइम उनका इलेक्शन लड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का फंडामेंटल जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। अ पर्सन विद एज 18 और द अबव कैन वोट, और इसी तरीके से बनती है लोकसभा। रोल ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का क्या रोल है, क्यों ज़रूरी है? इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री ऑफ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज विच आर डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्सीमेटली 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर 29 स्टेट्स हैं। इस बुक के अंदर 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। देयर इज़ अ लिटिल करेक्शन हियर। जब ये बुक बनी थी उस टाइम पे 9 यूटीज़ नहीं थी, 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं थी। हाल ही में ये डिसीजन हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम करेक्शन कर लेंगे। देयर आर नॉट 7 यूनियन टेरिटरीज, देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज विच आर डिवाइडेड इंटू अप्रॉक्सीमेटली 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Depending on the population, each state has a fixed number of constituency in the Lok Sabha. Population के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट के कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। The maximum strength of the Lok Sabha can be 552 members, जिसमें से 530 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और 20 या 20 से कम, 20 से ज़्यादा नहीं, 20 या 20 से कम जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं मेंबर्स, और 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जिनको प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुनता है। वो भी तब जब उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितना उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था लोकसभा में, अगर ना मिला हो तब उनको प्रेसिडेंट चुनते हैं। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज़ द स्पीकर हु कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस। लोकसभा का जो स्पीकर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और वो वहाँ जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, उनमें ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं और वहाँ की मीटिंग्स को पीसफुली कंडक्ट करवाते हैं। अ डिप्टी स्पीकर कैरीज आउट फंक्शंस ऑफ द स्पीकर इन हिज एब्सेंस। अगर स्पीकर एब्सेंस है तो उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर जो है वो कमान संभालते हैं। नाउ लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द लोकसभा एंड इट्स ऑल द डिटेल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 552, इसमें 550 तो इलेक्टेड होते हैं डायरेक्टली, और 2 जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और 20 मेंबर्स या उससे कम यूनियन टेरिटरी से हो सकते हैं। करंट नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं? 545 हैं। जब ये बुक प्रिंट हुई थी ये तब की बात है। टेन्योर, कितने साल का टेन्योर होता है लोकसभा का? 5 साल का। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? कौन सारी मीटिंग्स अटेंड करवाता है? स्पीकर। हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड? मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन से, जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं और अपने मेंबर्स को चुनते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं अगर लोकसभा का मेंबर बनना हो तो? अ पर्सन सीकिंग मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा हैज़ टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंडिया के पार्लियामेंट का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इंडिया का एक हिस्सा होना ज़रूरी है। लोकसभा के मेंबर को सबसे पहले तो इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है, और दूसरी चीज़, इट्स नॉट फनी है, इट्स लिटरली अ फैक्ट दैट पर्सन शुड बी मेंटली साउंड। कोई दिमागी बीमारी ना हो जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी जो है वो हिंडर हो रही हो। शुड नॉट बी बैंकरप्ट, पूरी तरह से कंगाल नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस कि कोई गवर्नमेंट जॉब पहले से ही ना हो। शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी डिसक्वालीफाइड अंडर एनी अदर लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, किसी भी तरीके से डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट के लॉज हैं उनके चलते किसी भी तरीके से डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। मस्ट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म फॉर इलेक्शंस। लोकसभा का मेंबर होने के लिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके बच्चों की, उनकी वाइफ की या हस्बैंड की, अगर वो मेल हैं तो उनकी वाइफ की, अगर वो फीमेल है तो उनके हस्बैंड की,
कुल मिला के परिवार की जितनी संपत्ति है और जो लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनका सारा ब्यौरा उनको नॉमिनेशन का जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनको सारा इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ें सौंपनी होती हैं। शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, और कम से कम उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट इलेक्शंस, बहुत बार सुना होगा ना अपने इलेक्शंस के बारे में। कहाँ जा रहे हैं? वोट देने जा रहे हैं। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं? वोट देने के लिए जा रहे हैं। घर में कोई और बड़े मेंबर हैं जो ऑफ द एज 18 और अबव हैं, वो वोट देने जा रहे हैं। तो वोट का मतलब क्या होता है? वोट का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन रहे हैं। जैसे सपोज करो आपके स्कूल में आपकी कबड्डी की टीम है या खो खो की टीम है या कोई भी टीम है, उसमें से जो सबसे काबिल प्लेयर होगा, जो सबसे एबल प्लेयर होगा, आप उसी को चुनोगे, क्योंकि आप उस टीम का जो लीडर है उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें देखोगे। आप उसके अंदर ये चीज़ें देखोगे, सबसे पहली चीज़ तो कि उसको लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, वो डिसीजन इस तरीके से करे कि सबके फेवर में हो, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। इसी तरीके से जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो हम उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें देखते हैं कि जब वो हमारे द्वारा चुने गए हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, हमारे हितों के बारे में, हमारे फ़ायदे के बारे में सोचें। इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस एंड वोटिंग इज़ डन बाय अ सीक्रेट बैलेट। एक सीक्रेट बैलेट होता है जहाँ पर वोटिंग की जाती है। पहले के टाइम में जब EVMs इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं थी, तब पर्चियों के ऊपर, बिट्स ऑफ पेपर के ऊपर निशान बने हुए होते थे और लोग अपना ठप्पा लगाते थे और बैलेट बॉक्सेस होते थे, जैसे दान पेटी होती है ना, उसी तरीके की पेटियां होती थी और उनके अंदर वो पर्चियां डाली जाती थी। फिर उन पर्चियों की काउंटिंग होती थी, जिस निशान की ज़्यादा पर्चियां होती थी वो निशान वाली पार्टी जो है वो जीत जाती थी, या वो मेंबर जिसके नाम से वो निशान था वो जीत जाता था। पर आज के टाइम में थोड़ा सा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, सिंबल्स बने होते हैं, बटन पुश करो और आपका वोट हो गया, बस सिंपल। और वोट करने के बाद आपकी फिंगर पे, आई मीन नॉट आपकी, बच्चों की नहीं, पीपल ऑफ द एज 18 और द अबव, उनकी उंगली पे एक स्याही से एक निशान बना दिया जाता है कि हाँ इस पर्सन ने वोट किया है। द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोक सभा। द इलेक्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और MPs। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, MPs। द पार्टी विच सिक्योर्स द मेजॉरिटी और मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स। देखो यहाँ पे हमने बात की थी कि 520 मेंबर्स होने चाहिए। अब 520 का हाफ कर लो, और हाफ से अगर एक सीट भी ज़्यादा है, 520 का हाफ यानी कि 260 मेंबर्स, राइट। 260 मेंबर से अगर एक भी प्लस है तो वो मेजॉरिटी पार्टी बन जाएगी, और वो मेजॉरिटी पार्टी है जो वो रूलिंग पार्टी होगी। और इन केस कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बनती है तो क्या होगा, उस कास्टिंग के अंदर भी, वोट कास्टिंग के अंदर भी जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं, अगर उसी पार्टी के जैसे विचार रखने वाली कोई और दूसरी पार्टी है तो वो अपने हाथ मिला सकते हैं और अपनी एक कॉमन अलायंस पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, जिसको कोalition बोलते हैं, उसको कोalition बोलते हैं। और वो एक कोalition गवर्नमेंट होती है, अलायंस पार्टी होती है। एंड द कीप चेक ऑन द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। Though the tenure of the Lok Sabha is for 5 years, the president can dissolve the Lok Sabha if the ruling party loses its majority or if the government falls. हालांकि लोकसभा का टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है, पर फिर भी अगर रूलिंग पार्टी है जो अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर देती है, यानी कि उसके जो मेंबर्स हैं पार्टी छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं फॉर अ रीज़न, या गवर्नमेंट फेल हो जाती है, तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट। राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम लिटरली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, राज्य, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि गुजरात, जैसे कि महाराष्ट्र, जैसे कि पंजाब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो राज्यसभा को कंप्राइज करते हैं और इस राज्यसभा को
अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। लोकसभा के मेंबर्स की तरह राज्यसभा के मेंबर्स को लोग डायरेक्टली चूज नहीं करते हैं। द करंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 245 मेंबर्स, ऑल्दो द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा कैन गो अप टू 250। अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो 245 मेंबर्स की है। आई एम अगेन हेयर नोटिफाइंग यू दैट दिस स्ट्रेंथ इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑफ द टाइम व्हेन द बुक वाज प्रिंटेड। जब ये बुक प्रिंट हुई थी, ये तब का डेटा बता रहे हैं। राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 मेंबर्स है, जबकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 जा सकती है। द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 238 मेंबर्स एंड द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स एंड सोशल सर्विस। इन फील्ड से भी अब आपको समझ में आ गया ना कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस क्यों इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को फॉर्म करने में इनका भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इफ़ यू आर ब्रिलियंट इन एनी ऑफ दीज फील्ड्स, probably in future you can also be a part of government. The states and the union territories are represented by 238 members and the president nominates 12 distinguished members from the field of art, literature, science, sports and social service. The members of the Rajya Sabha are elected by the state legislative assemblies. स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ करती हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपने मेंबर्स को चूज़ करके राज्यसभा का हिस्सा बनाती हैं। राज्यसभा मेंबर्स ट्राई टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। देखो, हर जगह को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन, हर राज्य को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन होता है। जैसे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं जो किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं या रिसेप्शन में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपके पूरे परिवार को इनवाइट ना किया गया हो, पर एटलीस्ट वन मेंबर जाता है, तो वो जो वन मेंबर जा रहा है वो आपकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने राज्यों को, अपने अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। Rajya Sabha members try to reflect the interests of the states they represent in the parliament. That is why Rajya Sabha is often referred to as the Council of States. When a law is being made, their opinion is also considered valuable. और ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन लॉ बनाने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। Even though they have less powers regarding the framing of laws, हालांकि उनके हाथ में लॉज की फ्रेमिंग को लेकर बहुत कम पावर्स होती हैं, बट फिर भी उनका जो ओपिनियन है, उनका जो मत है वो भी इम्पॉर्टेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट इन द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड प्रिजाइड्स ओवर देयर मीटिंग्स। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है एंड वो वहाँ की सारी मीटिंग्स को देखता भी है। Now let's take a quick look at the Rajya Sabha and its all the details. Maximum number of members can be 250, out of which 238 are elected and 12 are nominated. Elected here means is not elected by the people. Current number of members 245. Tenure कितना होता है? देखो, परमानेंट हाउस है ये राज्यसभा और कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसमें एक सिस्टम होता है कि इसके 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं 2 सालों बाद और उसके बाद फिर नए चुन लिए जाते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मीटिंग्स कौन अटेंड करवाता है? वाइस प्रेसिडेंट। हाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड, मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जो एमएलएज होते हैं जिनको स्टेट मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, वो चुनते हैं इनको। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट देम अनलाइक द लोकसभा मेंबर्स। लोकसभा मेंबर्स की तरह इनको डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। इनको इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं, ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो उनको फर्दर अपनी पार्टी में से चुनते हैं। मैंने आपको बताया कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो चुने जाते हैं डायरेक्टली लोगों के द्वारा, बट जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो एमएलएज के थ्रू चुने जाते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन सेम लोकसभा के जैसी ही हैं कि भाई इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा देना है। बस एक एज का थोड़ा होता है कि एज डिफरेंस होता है। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 ईयर्स होना चाहिए, जो कि लोकसभा का मेंबर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए।